Warm greetings on behalf of Wednesdays for Water, an initiative of the W4W Foundation, a think tank built as Citizens Collective. We welcome you to another season. This is our season 3. So Wednesdays for Water is a water conversation series towards understanding the nuances of water conservation and management. The objective is to engage with water experts like we have one today, grassroots practitioners, same we have today, policymakers and youth, again a youth today, to learn their thoughts and ideas about the complex intertwined issues associated with water and the possible solutions. You may be also aware now that we have expanded the conversations to Friday Waters when we have soft sessions and Monday Munching with particular focus on women who are working in the water sector. Besides, we are organizing water workshops, water talks, and seminars, and water walks also, and conference panels. Please visit our website, www.w4w.in for more details. In season 3, we are bringing something very interesting way of putting water conversations. So we will have a lake and pond series in season 3 for at least planned for another 6 months. And these special bodies, as you may be knowing, they are called the eyes of the earth, these water bodies. These are spatially distributed across every kilometer of the country's tropical landscape, and they still remain our main water source for all functions. अगर मैं उसको और अच्छे से बोलूं तो ऐसा देश में ऐसा कोई शहर, गांव या स्मॉल टाउन नहीं है जहाँ पे तालाब नहीं है, जहाँ पे लेक नहीं है. ऐसे बहुत शहर मिल जाएंगे शायद जहाँ रिवर नहीं हो, वेटलैंड्स नहीं हो, सी फ्रंट नहीं हो, बट ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ, और गांव भी नहीं है जहाँ आपको तालाब नहीं मिलेगा. तो ये जो सोशली इंजीनियर्ड हाई वैल्यू इकोसिस्टम्स जिनको हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट नेचर, ये वाटरस्केप के लिए भी उतने ही जरूरी है और लैंडस्केप डेवलपमेंट और लैंड यूज डेवलपमेंट के लिए भी उतने ही जरूरी है. बट इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो इस बात पे आता है कि ये एक पीस ऑफ लैंड भी है जिसमें कई समय साल के कुछ समय पानी रहता है और कुछ समय नहीं रहता है. इसलिए अक्सर मैं ऐसा कहती हूँ कि अ लेक लॉस्ट इज अ लैंड गेन्ड, और ये उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है. और इसके कारण हम देखते हैं जब कभी पानी नहीं रहता है इन तालाबों में, they importantly become garbage dump yards, and they eventually become landfill sites, and over the years they become land parcels. So let us keep this in mind that these are the main sources of energy, and also in last 100 years we have lost more than half the lakes and ponds in the country, and at the same time those which are remaining have reduced even less than half the size. Having said that, this green picture around it, we have not lost all of it. Importantly, there are many water warriors जो इनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमने ये लेक एंड पॉन्ड सीरीज शुरू किया है ताकि हम उनसे एकदम गहरी बात कर सके कि वो इनको कैसे देखते हैं, उसमें इनको क्या दिखता है और उनका अप्रोच क्या है इनको सुधारने का. तो हम सीजन 3 इस बार शुरू कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड क्योंकि मैं रामवीर को काफी समय से उनका काम देख रही हूँ और मैं चाहती थी वो पहले सीजन 1 और 2 में आए, बट अच्छी कोई बात नहीं कि हमारा सीजन 3 ही रामवीर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉट anyone who is working in water sector will say that I don't know him. Everyone in the water sector knows him in principle. The Pond Man of India. So welcome Ramveer to this platform. We are really honored कि आप आए और आप हम हमारे साथ अभी शेयर करेंगे अपना काम, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और इसको ये देखें कि इसमें क्या पोटेंशियल है. ये ना देखें कि गार्बेज डंपिंग ही इसका पोटेंशियल है, तो इसका बेटर साइड भी देखना जरूरी है. इसके पहले कि मैं आपको आमंत्रण करूं कि आप अपना प्रेजेंटेशन रखें, अपनी बात रखें, क्योंकि आप की नोट स्पीकर हैं तो आप एक लंबा स्पीच देंगे, उसके बाद हम आपसे काफी सारे सवाल करेंगे और शायद काफी सवाल आपके स्लाइड्स में भी होंगे, उनके जवाब. तो मैं आप छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. हालांकि हम सब आपको जानते हैं और बहुत स्नेह भी करते हैं, पर फिर भी एक इंट्रोडक्शन एक फॉर्मल तरीके से देना मेरा ये बेसिकली ड्यूटी है इस सेशन का. So Ramveer Tanwar grew up in a little village of Dadha in Uttar Pradesh. He spent his childhood helping his dad, who is a farmer, like most people in the area, and playing by the lakes and ponds.
जिससे कि मुझे मेरा बचपन भी याद आता है, बस पेड़ों में चढ़ना और नीचे कूदना तालाबों में। So now he is based in Greater Noida, started his campaign called Jal Chaupal in Gautam Buddha Nagar, urged people to conserve water and to save natural resources like ponds, lakes, and wetlands. He got trained by the Central Pollution Control Board, MOEF, and other agencies of the government and of other corporate agencies as well. He's working with them very closely and he's learning. And whenever you hear him, he's always saying, I'm eager to learn. I am learning. This is what I hear from him most of the time. And he is now founder of the Say Earth NGO. He's been praised by Honorable Prime Minister and in Mann Ki Baat, and also by Honorable Chief Minister Shri from Uttar Pradesh. He's declared as brand ambassador of Swachh Bharat Mission and Ghaziabad, and appointed district coordinator for Bhujal Sena Noida by the government of Uttar Pradesh. So उनका एक्चुअली मैं पढ़ने जाऊं उनका इंट्रोडक्शन तो मुझे तालाबों के हर नाम भी देने पड़ेंगे, कौन कौन से तालाब साफ किए, पर हम शायद उनसे ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। तो मैं इसी के साथ रामवीर आमंत्रण करती हूँ और थोड़ा सा अपना बारे में बताएं अपने, और आप कैसे देखते हैं पॉन्ड्स को। उसके बाद हम आपका प्रेजेंटेशन भी देखेंगे और आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेते हैं, क्योंकि आपका एक अनोखा तरीका है लोगों को साथ में ले जाने का। वो कैसे ले जाते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच रामवीर टू रियली एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। ओवर टू यू। धन्यवाद, धन्यवाद मानसी जी, आपने इतने सुंदर तरीके से मेरा परिचय लोगों को दिया। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इनिशिएटिव के माध्यम से, जिसकी अभी तीसरी सीरीज आज से शुरू होने जा रही है, तो इस सीरीज के माध्यम से, इस पूरे इनिशिएटिव के माध्यम से आपने काफी लोगों को जोड़ा है। न केवल जोड़ा है बल्कि उनको जागरूक किया है। बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले लोगों के एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज के माध्यम से। तो ये सच में एक सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपकी पूरी टीम को। जहां तक मेरी बात है, मेरा नाम रामवीर तंवर है और मुझे पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि मैं तालाबों की बात करता हूँ, तालाबों के लिए काम करता हूँ, तालाबों की सफाई करता हूँ और एक मरे हुए तालाब को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। तो ये मेरा काम है मुख्यतः, और इसके लिए मैं देश विदेश हर जगह मंच पर तालाबों के बारे में बात करता हूं, ताकि लोग भी उस बारे में बात करना शुरू करें। कम से कम यह मुद्दा एक युवाओं के बीच में एक आए, क्योंकि आज अगर आप युवाओं के बीच में, मैं क्योंकि खुद उस उम्र का एक हिस्सा हूँ, उस एक युवा एज का एक हिस्सा हूँ, तो मैं आसपास के युवाओं के साथ एज ए फ्रेंड, एज ए उनका बीच का कलीग जब बनकर बैठता हूं, तो मैं देखता हूं कि उनकी 90% बातें या फिर 100% बातें सिर्फ आजकल के चीजों के बारे में है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो नई तरह की टेक्नोलॉजीज हो। लेकिन किसी का कोई बात मैंने कभी किसी से नहीं सुनी कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा हो, तो वो मुझे काफी कमी महसूस हुई। अब मेरा जो प्रयास है कि मैं तालाब जैसे एक बोरिंग सब्जेक्ट को, बोरिंग टॉपिक को मैं युवाओं के बीच में चर्चित कर दूं, और उसमें मैं काफी जगह सक्सेस भी होता हूं, काफी जगह फेल भी होता हूं। लेकिन काफी युवा कहते हैं, काफी लोग कहते हैं कि ये सच में एक बहुत बोरिंग टॉपिक था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करना, लेकिन आपने इसको इतना ग्लैमरस, इतना हाईलाइट कर दिया कि सब लोग इसके बारे में बात करने लगे। आप एक क्या नाम है, फिल्म स्टार की तरह देश में देखे जाने लगे हैं। तो हमें भी उम्मीद लगी है कि लोग सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि आज के युवाओं का एक ड्रीम होता है टेडक्स स्पीकर बनना। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, तो आज के युवाओं का ड्रीम सब होता है कि मैं एक दिन लाइफ में टेडक्स स्पीकर बनूंगा। और मैं बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, तो उनकी विश लिस्ट के बारे में मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में। बहुत सारे युवाओं को आता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मुझे एक दिन टेडक्स टॉक देने का मौका मिले। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने 10 बार टेडक्स स्पीकर रहा हूँ, तो ये, और अभी आप पहले ही बार बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये इस तरह से नहीं होगा।
आपको हाउ टू बिकम टेडक्स स्पीकर की किताब पढ़ के टेडक्स स्पीकर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको एक किताब पढ़ने की बजाय आपको ग्राउंड पे जाके आपको समाज, पर्यावरण और अपने लिए कुछ करना होगा, जो कि ग्रास रूट लेवल पे होगा और वो सबको फायदा पहुंचाने वाला होगा। तो ये एक छोटा सा मैं युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जहां तक तालाबों की बात है, तो अभी मानसी जी आपने भी बताया कि किस तरह से हमने एक बड़ी संख्या जो तालाबों की है वो हमने खो दी है। और खो दी क्या, मैं तो ये कहूंगा कि हमने उनको किल कर दिया है, मार दिया है। एक अगर हम आंकड़ों पर जाएं, तो एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि देश में आजादी के समय 25 लाख हिस्टोरिकल पॉन्ड्स थे, 25 लाख ऐतिहासिक तालाब थे। लेकिन 2017 में जब फिर से उनकी गिनती हुई तो 25 लाख में से सिर्फ 5 लाख ऐतिहासिक तालाब भारत में बचे। इसका मतलब है कि भारत में हम पानी के साथ साथ 20 लाख तालाबों को भी पी गए। मैं पी गए इसलिए शब्द कह रहा हूं क्योंकि उनका अस्तित्व आज खत्म हो चुका है। तालाब की जगह हॉस्पिटल बने हैं, तालाब की जगह कॉलेज बने हैं, तालाब की जगह यूनिवर्सिटी बनी है, तालाब की जगह पुलिस स्टेशन और तालाब की जगह लोगों के घर बने हैं। और मुझे कहते हुए बिल्कुल ऐसा बुरा नहीं लगता कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने तालाब पर कब्जा करके तालाबों पर अपनी यूनिवर्सिटी बनाई, और उसी यूनिवर्सिटी में आज एक क्लास चलती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। वो मुझे भी बुलाते हैं कि बच्चों को सिखाइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि पहले अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ से हटाइए क्योंकि ये तालाब के ऊपर बनी है। तो ये और ये बहुत दुख की बात है कि ये जो सब हो रहा है वो भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है। आप देखिए, कहीं भी देखिए, आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाके देखिए, किसी कॉलेज में देखिए, 90% बातें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं, लेकिन उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। वो सिर्फ हमारा अच्छे नंबर लाने के लिए यूज होता है। जब मैं छोटा था तो मेरा, क्योंकि मैं अभी भी गांव में रहता हूँ और गांव में ही पला बड़ा हूँ, गांव के स्कूल में ही मैं पढ़ा हूँ। जो मेरा काम था कि बहुत सारी भैंसों को छुट्टी होते ही अपने जंगल में चरा के लाना, फिर उनको शाम को आके बांध देना, वो सारी चीजें मेरी थी। लेकिन मैंने खुद, मुझे महसूस होता है कि मैंने तालाबों में नहाना सीखा है, मैंने तालाबों में तैरना सीखा है। लेकिन जैसे जैसे स्टडी की तरफ ऊपर गए, तालाबों का जो जीवन है वो नीचे आता रहा, है ना। तो एक दूसरे के बिल्कुल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना जिसको, कि एक दूसरे के उल्टा है। भारत में जितना पीएचडी करने वाले की संख्या बढ़ रही है, तालाबों की संख्या उतनी तेजी से घट रही है। तो ये हमारी शिक्षा का एक परिणाम है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज एक एसी के कमरे में बैठ के वेटलैंड्स के बारे में थीसिस लिख देते हैं, उनकी पास भी हो जाती है और उनको लाखों रुपए की नौकरी भी लग जाती है। लेकिन कभी उन्होंने उस तालाब को जाके नहीं देखा जिसके बारे में उन्होंने थीसिस लिखी है। तो ये मेरा उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वेबिनार्स के माध्यम से जुड़कर मैं अपने आप को एक, मैं, क्योंकि मैंने ना इस बारे में ऐसा कोई कोर्स किया है, ना मैं आईआईटी से हूँ, ना मैंने पीएचडी किया है, ना मैंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है। मैं अपने आप को एक वैसा समझता हूँ कि जैसे एक आईआईटी के बाहर स्कूटर सही करने वाला एक मैकेनिक होता है, इसको नहीं पता इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि स्कूटर के पीछे क्या साइंस है, लेकिन बस वो उसको खोलना, बांधना, ठीक करना जानता है। तो मुझे तालाबों के पीछे की जितने भी ये थीसिस है, जितने पेपर पब्लिश होते हैं, मुझे उनके बारे में नहीं पता, ना मैं उनको कुछ कहीं पे अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ या प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास आज बहुत सारे आईआईटीएंस, पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो मेरे पास काम करते हैं, और मैं उनको बहुत सारी चीजें बताता हूँ, और उनके काम की चीजें भी होती हैं जिन तब वो कहते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं वो काम करता हूँ जो सिलेबस में नहीं लिखा गया कभी। इसलिए शायद लोग मुझे बुलाते भी हैं आईआईटी जैसी जगह पे। तो अगर तालाबों को आप नॉर्थ इंडिया के, आप पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे, तो आपको तालाब कम, वो लैंडफिल साइट ज्यादा लगेगी। आप तालाबों में आज 4 या 5 6 तरह की कॉमन समस्याएं हैं। जैसे पहली समस्या है उसमें हमारा डोमेस्टिक गार्बेज। दूसरा है उसमें जो सीवेज हमने डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दिया है।
तीसरा, जो लोगों ने उसको एंक्रोच कर लिया है। चौथा, एंक्रोच करने के अलावा जो लोगों ने जो उसका कैचमेंट एरिया है तालाब का, क्योंकि तालाब का होना या नहीं होना उसके कैचमेंट एरिया पर डिपेंड करता है। तो तालाब का कैचमेंट एरिया जो हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया है, अब तालाब में कोई बारिश का पानी अपने आप बह के नहीं आता, उसको जबरदस्ती लाना पड़ता है। वो एक तालाब का कैचमेंट एरिया बर्बाद होना, वो सारी चीजें तालाबों की प्रॉब्लम में है। तो मैं मानसी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार, मैं इन सारी चीजों को हालांकि वर्बली भी बता सकता हूं, लेकिन अगर आपको पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा तो वो बहुत अच्छे से रहेंगी। Is the PPT visible? Yes. This is visible. Let me just play the slideshow. Just a minute. Yes. Slideshow. तो हाँ, ये जैसे अभी मेरे सामने दो वर्ड लिखे हैं, से अर्थ और पॉन्डमैन। तो ये से अर्थ मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हालांकि अब तो दोनों ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। पॉन्डमैन माननीय प्रधानमंत्री जी दिया गया हुआ एक शब्द है। इसको पहले मेरे यार दोस्त बस एक मजाक में कहा करते थे, लेकिन ये धीरे धीरे एक सिंबल बन गया। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अपनी मन की बात में जिक्र किया, तो उसके बाद से ये पूरा एक काफी पॉपुलर वर्ड हुआ। तो ये छोटा सा नेक्स्ट वन। तो ये एक ट्रस्ट हमारा है से अर्थ, जिसके अंदर हम ये काम करते हैं। और ये हमने 15 जनवरी 2020 को ही रजिस्टर कराया है। उसके पहले हम बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ कर। नेक्स्ट वन। तो हम बहुत ये छोटी मोटी एक्टिविटी इस तरह की करते हैं, जैसे जल चौपाल है। जल चौपाल से ही हमारी यात्रा शुरू हुई थी। और जल चौपाल का मतलब है वाटर मीटिंग। Water meeting in which we discuss about the crisis, water problems, water solutions, water challenges. So these are our topics कि हम we discuss with villagers और community. Like कि कितना 10 साल पहले कितना ग्राउंड वाटर लेवल था, अभी कितना है, गांव के तालाब की स्थिति क्यों इतनी खराब हुई, उसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, आपका क्या हमें सहयोग चाहिए, वो सारी चीजें हम जल चौपाल में करते हैं। Clean drives means कि we just clean the bioremedial and non like inorganic waste from ponds, plastic, rubber, कपड़े, ये सारी चीजें। Restoration of water bodies means कि we do desilting, earthwork, bund creation, fencing, वो सारी चीजें। फिल्ट्रेशन वाटर क्वालिटी मीन्स जैसे अभी अरजीत सिंह जी भी बता रहे थे, चाहे वो मिनी पॉन्ड के माध्यम से हो, कंस्ट्रक्टिव वेटलैंड, फ्लोटिंग वेटलैंड, बायो रिमीडिएशन, वो सारी तकनीकें हम अपनाते हैं तालाबों के पानी को साफ स्वच्छ रखने में। एफोरेस्टेशन मीन्स कि हम चारों तरफ पेड़ लगाना या उसके चारों तरफ बीज डालना, सीड्स डालना कि पेड़ बन जाए कुछ दिन में। एनवायरमेंट अवेयरनेस लाइक तालाबों के आसपास वॉल पेंटिंग करना, है ना, वेस्ट टू आर्ट की एक वर्कशॉप करना कि कैसे हम कचरे, निकला हुआ जो कचरा है उसको अच्छी चीजें बना सकते हैं उससे। और सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि हम कैसे तालाब को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। सेल्फ सस्टेनेबल बनाने से मेरा मतलब है कि तालाब को इस तरह से हम डेवलप करें या उसमें इस तरह की कुछ एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करें कि तालाब को बार बार साफ करने की जरूरत ना पड़े। आई मीन कि उसके मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है, तालाब को तो साफ करने की जरूरत पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है ना। अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका भी मेंटेनेंस हमें करना पड़ता है, अदरवाइज वो खंडर बन जाता है, चाहे आपने वो 50 करोड़ का खरीदा है या 1 अरब का खरीदा है। तो तालाब भी वैसी चीज है, आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबल से मेरा मतलब है कि जो उसके मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो तालाब खुद अर्न करे अपनी कॉस्ट। तो वो अर्न कैसे कर सकता है, या तो उसमें अभी फिश फार्मिंग, इको टूरिज्म, लोटस फार्मिंग, वाटर चेस्टनट फार्मिंग, कुछ तो एक्टिविटी उसके साथ हमें जोड़नी पड़ेगी। जब किसी को इनकम होगी, उस अगर 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है तो 10,000 रुपए बिल्कुल वो खर्च करेगा अपने मेंटेनेंस पे। अगर वो नहीं करेगा तो उसका नुकसान है
तो वो सारी चीजें, तो इस तरह से हम तालाब को सेल्फ सस्टेनेबल बनाते हैं। नेक्स्ट वन, ये जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि तालाबों में ये हमारी प्रॉब्लम अभी देखी जाती है, चाहे वो वाटर हाइसिंथ हो, ऑर्गेनिक वेस्ट या डंप हो, डकवीड है, सिल्ट है, और सीवेज की प्रॉब्लम है, कैचमेंट एरिया है, लोगों ने एंक्रोचमेंट कर लिया है, वो शायद, तो ये सिर्फ इंडिया में ज्यादातर पॉन्ड्स की सिर्फ यही प्रॉब्लम है, इससे अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन, अब आप इसमें देखेंगे आपको इस तालाब में दो चीजें दिखेंगी। एक इस पिक्चर में दो चीजें दिखेंगी, एक तालाब जो कि एक ऐतिहासिक तालाब है, 200-300 साल पुराना तालाब है, और उस तालाब के बगल में बनी एक रिसेंटली बिल्डिंग, है ना। तो जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे एक ऐतिहासिक तालाब लैंडफिल साइट बनता चला गया। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इस तरह की जहां जहां अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है वहां वहां गांवों के तालाब इसी हालत में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी है हमारा जो डेवलपमेंट की, उसमें क्या गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चीजें पहुंच नहीं पाती उतनी जल्दी। दूसरा, गांव के लोगों की लाइफ स्टाइल एकदम से बदलने लगती है, वो उतना चिप्स कुरकुरे सारी चीजें पैक खाने लगते हैं, तो लेकिन गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता नहीं है। तो अब गांव में कुछ पब्लिक प्लेस होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है, कैसे, कहीं मंदिर होता है, मस्जिद होता है, स्कूल होता है, तालाब होता है, शमशान घाट होता है, कब्रिस्तान होता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है किसी भी गांव में। अब पब्लिक प्रॉपर्टी में से ना तो कोई मंदिर में कचरा डालने देगा, ना मस्जिद में, ना शमशान घाट में, ना कब्रिस्तान में, ना स्कूल में। गांव के लिए फिर एक सॉफ्ट टारगेट बनता है या बचता है तालाब। तो वो तालाब में शुरू करना डालते हैं, और तालाब में डालते 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 वो भर जाता है और इस स्थिति में पहुंच जाता है। ये दिल्ली के आसपास का ये एक तालाब है। नेक्स्ट वन, दूसरा जैसे आप देखेंगे अगली पिक्चर में कि वो तालाब जिसमें वाटर हाइसिंथ प्लस गार्बेज, आप ये जिधर आप कचरा है ये रोड की तरफ है, मींस हमारी जो आदत है ना, रोड की तरफ से हम सुबह सुबह अपने ऑफिस, घर और दफ्तर कहीं भी जा रहे हैं, एक हाथ में थैला है, और घर वाले कहते हैं अपने बच्चों से कि बेटा जब जाओ तो रास्ते में एक वो पड़ेगा, तालाब पड़ेगा, उसमें फेंकते जाना, है ना। क्योंकि हमने उनको सिंक होल समझ लिया है, हमने उनको एक ऐसी चीज समझ लिया है कि जहाँ कोई भी कचरा डालेंगे वो गायब हो जाएगा, लेकिन गायब नहीं होता है वो। जिसमें हवा है वो ऊपर तैरेगा, जिसमें सॉलिड है वो जाके नीचे बैठ जाएगा। तो यही कारण है कि जब हम किसी तालाब को साफ करते हैं, उसका सीवेज निकालते हैं, तो नीचे 2 से 3 फीट की एक लेयर हमें दिखाई देती है, और वो पूरी लेयर होती है प्लास्टिक, रबर, कपड़े की, साड़ियां, जूते, चप्पल, रजाई, गद्दे सब वहीं रखे मिलते हैं आपके। तो ये तालाबों की स्थिति है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हमने एक बार मान लिया है कि जो तालाब मर गया तो मर गया, एक बार लैंडफिल साइट जैसा दिखने लगा तो उसको अब और लैंडफिल बनाइए। अब वो उसको बिल्कुल एकदम कचरा डाल के, एक दिन उसके ऊपर मिट्टी डाल के, है ना, और फिर उसको एक बारात घर बना दिया जाए, वहां पे एक प्ले ग्राउंड बना दिया जाए। क्योंकि आज भी मैं जब गाँव में काम करता हूँ, गाँव में जल चौपाल में लोगों से मिलता हूँ, तो गांव के लोगों को 2 ग्रुप में बट जाते हैं वहां पे। एक ग्रुप जो हमारे साथ होता है कि नहीं ये तालाब साफ होना चाहिए, एक ग्रुप वो कहते हैं कि नहीं आप इसमें मिट्टी डाल के जी हमारे लिए एक अच्छा सा पार्क बना दो, या बारात घर बना दो, यहाँ ये बना दो, क्योंकि लोगों को तालाब का महत्व नहीं पता है। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल नहीं कर सकता आपका कहे की बात। आपके गांव में कोई बारात घर हो तो उसको तोड़ के मैं जरूर तालाब बना सकता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे अपना फंड लाना पड़े, परमिशन लानी पड़े, लेकिन किसी तालाब को मैं बारात घर में नहीं बन दूंगा। तो ये मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमने जो सोच लिया कि तालाब वैसे ही है तो वैसे ही रहेंगे, इनको और खराब कर दिया जाए, नहीं, तालाबों को अच्छा किया जा सकता है। और इसके उदाहरण है हमारी नेक्स्ट तस्वीर। इसके अलावा हमारे पास शहरों में बहुत सारे लैंडफिल साइट्स भी हैं जो कभी अच्छी जगह होती थी, है ना। तो ये एक लैंडफिल साइट है, तो पूरा भी देखिए कैसी बन गई है, इनको हम जंगल में बदल रहे हैं धीरे धीरे।
हमने अभी 3 ऐसी लैंडफिल साइट्स को अडॉप्ट किया है और इनको सब हमने छोटे छोटे जंगल में। नेक्स्ट वन, ये जो तस्वीर है, तो अभी आपने इसका एक पिछली तस्वीर देखी, अभी इसका बिफोर आफ्टर का देखिए, जनवरी 2022 में कैसी थी और जनवरी 2023 में ये कैसी हो गई है। तो ये एक उदाहरण है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि तालाबों को सही किया जा सकता है। उसके लिए हमें चाहिए लोगों की मदद, थोड़ा सा फंड, सरकार की अनुमति और बहुत सारा मोटिवेशन। ये एक तालाब का एक उदाहरण है और ये सिर्फ ऐसे ऐसे हमने देश भर में 100 से ज्यादा तालाबों को रिस्टोर किया है। न केवल रिस्टोर किया है बल्कि बहुत सारे उन तालाबों को में से कुछ तालाबों को हमने सेल्फ सस्टेनेबल भी बनाया, जैसे ये एक उदाहरण है। इसके चारों तरफ अगर आप अभी जाएंगे इस तालाब पे, ये वेव सिटी में पड़ता है, दिल्ली गाजियाबाद के पास। तो वहां आप देखेंगे जाके, तो इसके चारों तरफ सब्जियां उगी हुई है लोगों की, बीच में फिश फार्मिंग है, बीच में छोटे छोटे टापू बने हुए हैं जहाँ पे बत्तखें आती हैं। तो ये एक सेल्फ सस्टेनेबल पॉन्ड है। अब इसको बार बार हमें रिवाइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। नेक्स्ट वन, ये एक दूसरा है, ये भी बिल्कुल एनसीआर का एक तालाब है और ये मैं मैं प्राउड के साथ कहता हूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मन की बात में दिस पिक्चर वाज यूज्ड एज एन एग्जांपल टू दिस नेशन कि yes we can convert our landfill site into the pond. So this was the example. Next one. तो अभी मैं आपको कुछ बिफोर आफ्टर की तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। ये गुड़गांव का एक तालाब है। नेक्स्ट वन, तो ये सिर्फ बिफोर आफ्टर है और मुझे जो लगता है कि तालाबों को रिस्टोर करना एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना, लेकिन उनको एक सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, उनको बायोडाइवर्सिटी के लिए उपयुक्त बनाना, वो सच में एक बड़ा कार्य है। क्योंकि तालाब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इंसेक्ट्स के लिए, बटरफ्लाइज के लिए, हनी बीज के लिए या माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ज्यादा जरूरी है हमसे, क्योंकि हमारे पास घर है, उनके पास घर नहीं है आज। तो हम तालाबों के बीच में इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड्स को डेवलप करते हैं, उस पर घास लगाते हैं और घास लगाकर उनको तैयार करते हैं कि वहां पे वो अपना घोंसला बना सके, वहां पे वो रह सके और कुत्ते बिल्ली से छुप के रह सके, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं के लिए, अचानक से उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। तो ये उनको हम एक सिक्योर फील कराते हैं और इस वजह से हमारे सारे तालाब बत्तखों से भरे रहते हैं और कोई बत्तख नहीं लाता, वो सब अपने आप उड़ के आती है और वहां पे आके रहने लगती है। नेक्स्ट वन, इसका मैं आपको ये उदाहरण दिखाता हूँ, है ना। तो ये आइलैंड्स खुद हमने मिट्टी डाल डाल के तालाबों के बीच में बनाए हैं, लेकिन आज उनपे बहुत सारे घोंसले, क्योंकि बत्तख कभी अपना बड़ा घोंसला नहीं बनाती, वो घास के बीच में छोटा सा एक अपना अंडा रखती है, सारी ज्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो आज ये सारे छोटे छोटे अंडों से भरे पड़े हैं और हम खुद इनकी तरफ कभी नहीं जाते ताकि उनको इनसिक्योर फील ना हो, उनके अंडों को नुकसान ना हो जाए। बट वो बहुत अच्छा लगता है कि जो तालाब 2 साल पहले गार्बेज से भरा हुआ था, आज वो माइग्रेटरी बर्ड से भरा हुआ है। तो दैट गिव अस वेरी इमेंस लाइक हैप्पीनेस टू आवर टीम। नेक्स्ट वन, ये एक पूरा प्रोसेस है किसी तालाब को रिस्टोर करने का, कि सबसे पहले हमें पॉन्ड हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद एक जॉइंट विजिट करते हैं स्पॉन्सर के साथ जो हमें फंडिंग करते हैं। गवर्नमेंट, क्योंकि ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज गवर्नमेंट की हैं और गवर्नमेंट की जो पब्लिक वाटर बॉडीज है उन्हीं को हम सिर्फ रिस्टोर करते हैं, ना कि प्राइवेट को। तो उनके लिए फिर गवर्नमेंट से एनओसी, उनके साथ एमओयू साइन करते हैं, प्रपोजल हम देते हैं स्पॉन्सर को कि भाई इसमें इतना खर्चा आएगा। एक स्पॉन्सर मान लो कोई नहीं तैयार है तो दूसरे से फंड लेते हैं, लेकिन टचवुड की हमें आसानी से फंड्स मिल जाते हैं। वर्क ऑर्डर कंफर्मेशन जैसे मिलता है, फिर हम वहां पे हम जल चौपाल लगाते हैं, गांव के लोगों को बताते हैं कि हमारे पास आपके लिए ये गिफ्ट है, हम सपोर्ट करेंगे, आपको ये भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन हम अगले 1 साल में इस तालाब की तकदीर को बदल देंगे। फिर हम एक वाटर चाहे उसकी वाटर सैंपलिंग हो, ये सारी चीजें हो, क्वालिटी रिस्टोरेशन करते हैं।
बाद में लैंडस्केपिंग करते हैं, लाइक चारों तरफ घास लगाना, पेड़ लगाना, फेंसिंग करना, फूल फुलवाड़ी, सब्जी उगाना, वो सारी चीजें हम करते हैं, पॉन्ड आइलैंड डेवलप करना। बाद में जो मेन चीज बचती है दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो फिर उसको मेंटेन करते हैं अगले 1 साल तक, गांव के लोगों को ट्रेन करते हैं कि कैसे मेंटेन करके रखना है आपको। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है उनको ट्रेन करते हैं 1 साल तक कि कैसे मेंटेन रखना है आपको। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ पॉन्ड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट वन, जो मैं बता रहा था कि हम बहुत सारे शहर में छोटे छोटे लैंडफिल साइट पड़े हैं, कचरा भरा रहता है, तो हम ऐसे बहुत सारे लैंडफिल साइट्स को हम अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये एक एग्जाम्पल है उस चीज का। तो ये लगभग यहाँ पे हमने 10,000 पेड़ लगाए हैं बहुत बड़ी जगह पे, और 100% सर्वाइवल रेट के साथ आज वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि आज भारत में ट्रेंड चल गया है कि आप पेड़ लगाइए, फिर वो बड़ा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल फिर से गवर्नमेंट भी रिकॉर्ड बना देती है सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का, लेकिन 10% सर्वाइवल रेट के साथ हो जाता है, लेकिन हम 100% की गारंटी लेते हैं। तो ये सब कॉर्पोरेट द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं, लोग जो CSR फंड्स होते हैं। लोग भी अपना छोटे छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं। किसी ने बोला जी मेरी तरफ से 500 पेड़ लगा दीजिएगा, तो वी एक्सेप्ट हैप्पीली, उनके 500 पेड़ों को लेते हैं और कहीं लगा देते हैं, उनको मेंटेन करते हैं फिर हम। तो ये तरीका है हमारा काम करने का। नेक्स्ट वन, ये फिर से देखिए अभी कितने, ये जैपनीज मेथोडोलॉजी है पेड़ लगाने की, कॉल्ड मियावाकी मेथोडोलॉजी। तो उससे बहुत जल्दी पेड़ बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, ये एक लैंडफिल साइट है जिसको हम इसी वीक से यहाँ पे एक जंगल उगाने जा रहे हैं। तो हमको 1 साल लगा इसको क्लियर करके, यहाँ पे नई सॉइल फिलिंग करी है पूरा, और इसमें हम लगभग 30,000 पेड़ लगा रहे हैं। और इस तरह के हमने काफी लैंडफिल साइट्स को गवर्नमेंट से अडॉप्ट कर लिया है, और ये इंडिया में पहली बार होगा कि इतनी बड़ी लैंडफिल साइट्स को एक बड़ा डेंस फॉरेस्ट में बदला जा रहा है। तो देखते हैं हमें कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन अभी तक और लोग हमारे साथ हैं, सरकार बहुत सहयोग कर रही है, कम्युनिटी हमारे साथ है। अब हमें 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा जब एक नया एग्जाम्पल इंडिया के, नया उदाहरण इंडिया के लिए आएगा कि हम लैंडफिल साइट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये किसी तरह के दूसरे लैंडफिल साइट का एक एग्जाम्पल है। इसमें हम 50,000 पेड़ लगा के एक बड़ा जंगल उगाने जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, ये जैसे देखिए अभी उसमें कुछ पेड़ तो हमने लगा भी दिए हैं। तो ये एक जंगल की अभी 2 महीने पहले हमने लगाए हैं। तो ये अभी इनिशियल फेज में है, अगले 1-2 साल लगेगा इनको एक पूरा जंगल का रूप लेने में। तो इसमें घास होगी, पेड़ होंगे, झाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा इसमें। ऐसा कोई मतलब आर्टिफिशियल जंगल नहीं लगेगा, पूरा एक प्रॉपर जंगल लगेगा जिसमें इंसान नहीं घुस पाएगा, इतना डेंस फॉरेस्ट होगा। तो नेक्स्ट वन, ये हमारे कुछ कॉर्पोरेट स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हमें ये इनिशिएटिव्स के लिए फंड किया है CSR के अंतर्गत। नेक्स्ट वन, तो ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी मानसी जी ने भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमने 6 जंगल बनाए हैं, 40 से ज्यादा लेक्स को हमने वो किया है, 10 बार हमने टेड टॉक दिया है, 3 किताबों में हमारा जिक्र हुआ है अभी तक, और 100 से ज्यादा हमने IITs, IIM, PSUs, नेशनल यूनिवर्सिटीज में लोगों को जागरूक किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें अप्रिशिएट किया है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमने अप्रिशिएट किया है। नेक्स्ट वन, ये एक लास्ट वो है, और मैं बराक ओबामा का एक कोट है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जनरेशन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। ये बहुत सही है एक तरह से, और मुझे सच में लगता है कि हम बहुत लास्ट जनरेशन है जो सच में इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इसके बाद अदरवाइज स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि करेंगे भी तो उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे
और बिल्कुल खुलेपन से पूछ सकते हैं, कोई औपचारिकता आपको नहीं निभानी है। अगर आपको कुछ सजेशन भी देना है वो भी दीजिए, क्योंकि हम पूछेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। धन्यवाद। थैंक यू रामवीर, आपने इतनी सरलता से इतनी गंभीर विषय को समझाया कि ये मुझे लगता है प्राइमरी स्कूल से शुरू कर देना चाहिए समझाना कि किस तरह से समझाया जाए। मैं तो एक्चुअली आपके समझाने के तरीके से भी काफी इम्प्रेस्ड हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं और इस विषय पे बात कर चुके हैं। आप बहुत सरलता से गंभीर चीज को जो समझाते हैं उससे शायद कम्युनिटी से कनेक्ट होने में भी वो बहुत हेल्पफुल होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत आसान काम है कि कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, उनको कन्विंस करके उनके साथ चलना और उनके साथ काम करना। और क्योंकि एक बार आपने डेवलप कर दिया उसके बाद मेंटेनेंस में तो कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उनके बगैर उनके सहमति बगैर मेंटेनेंस बहुत लंबा रखना मुश्किल काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा स्पीच और प्रेजेंटेशन की और बहुत सिंपल स्लाइड्स के जरिए आपने समझाया। मेरे तो खुद के बहुत सवाल हैं, पर चूंकि मैं होस्ट हूँ तो अपने सवाल में रखती हूँ। और may I invite others to please ask questions. Please unmute yourself and just ask him. And then I will also pour some questions from mine. Yeah. I see Sania, you have unmuted yourself. Would you like to go ahead first? Yeah, actually, I'm representing Young, and Yes, please go ahead. basically we are trying to save the lake at Ognich, and we're trying to be very positive about it, though it's a very big upheaval because builders are concerned over here. So हमने बहुत चाह कर भी हमारे जो ग्रुप मेंबर्स, जो ओग्निच पार्क प्लॉट ओनर्स एसोसिएशन जो है वो इतने काम में होते, तो जब घूम फिर कर हम लोग 4 या 5 जने खड़े हो जाते हैं, तो it becomes a little tedious for us why people are not awakening. So how we can do something to awaken the people for the drive right now, you know, we are trying our level best कि सबको समझ आए करके ये क्या कितना जरूरत है, पर that's all we can do, I feel. बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, जी, go ahead. आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि ये इस तरह का इनिशिएटिव है या इस तरह का टॉपिक है कि सब लोग इससे नहीं जुड़ पाएंगे। आप अभी दूसरा टॉपिक रखिए कि स्कूल के बच्चों की फीस कम करानी है, तुरंत लोग आपसे जुड़ जाएंगे क्योंकि सबका डायरेक्ट बेनिफिट है उसमें। आप अभी करिए कि देखिए सबको क्या नाम है टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, तुरंत लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट है और ये इसके लिए लोग टाइम नहीं निकालना चाहते। तो इसके लिए आपको जो है मुझे जो समझ है, इसके लिए आपको एक तरह से लोगों को उन्हीं के बीच में जाके उनको देखना पड़ेगा, वहां की एक नब्ज पकड़नी पड़ती है उनको, उस लेक से उस पॉन्ड से जो डायरेक्ट बेनिफिट हो सकते हैं या डायरेक्ट जो नुकसान हो रहे हैं। लाइक वहां पे अगर कोई मेडिकल इश्यू हो रहा है, लोगों को फेस हो रहा है, वहां पे अगर कोई लोगों को ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम हो रही है या वाटर क्या नाम है कुछ ऐसा इश्यू है वहां पे, तो नहीं इश्यू, सॉरी बीच में बोलने के लिए, बट इश्यू यहाँ ये है कि पूरा जो डेवलपमेंट वहां पे किया है तो वो एक डेवलपर था और ही वाज एन आर्किटेक्ट और पूरा बेसिक उन्होंने ये डिजाइन के रूप में खड़ा किया था एज एन अट्रैक्शन फॉर luring people to the area. अभी उन्होंने तो वो पहले गांव था तो गांव में से 3-4 गांव को इकट्ठा करके ये स्टर्लिंग ग्रीनवुड्स करके डेवलप किया। उन्होंने कंपनी बनाई स्टर्लिंग ग्रीनवुड्स की और ओग्निच पार्क प्लॉट ओनर्स एसोसिएशन को कॉमन प्लॉट के मालिक बना दिए। बट अभी क्या हो रहा है कि इलीगली द
वो तो गुजर गए, उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने इलीगली वो डेवलपर को बेच रहे हैं। और सब ओनर्स वहां के जो ओगनिच पार्क के प्लॉट ओनर्स है उसमें से आधे तो बिक चुके हैं। मतलब ये भी डेवलपर के जो अभी नए डेवलपर आए हैं उनके साथ होके इन लोग के हाँ ये ठीक है, इसको फिलिंग कर देते हैं, ऐसा सब बोल रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। उस केस में तो क्या होता है सानिया जी, देखिए दो चीजें हैं। आप तो सोचती हैं ग्रीन मतलब कि ग्रीन तो रहेगा नहीं, अभी वो उसका नाम ही ग्रीन वुड्स है, जैसे स्टर्लिंग ग्रीन वुड है, पर वो ग्रीन तो रहेगा नहीं ग्रीन तो क्योंकि ये रहेगा। हाँ। तो ये मतलब कि कंक्रीट का जंगल अगर ऑलरेडी चालू किया है इन्होंने, 2 बड़ी बिल्डिंग्स आ गई है बाजू में, रिसोर्ट के बिल्कुल बगल में। So, and they have started filling up the lake, which we somehow stopped. And the person, अपना इंस्पेक्टर या somebody had come, कलेक्टर में से कि किसी ने आके रातों रात रुकवा दिया काम, बट नेक्स्ट डे वापस वो लेक को ड्रेन करने का चालू कर दिया और फिशेस सारी निकाल दी, टर्टल सारे निकाल दिए, और जो पक्षी वहां पे थे, जो गीज वगैरह सब थे, उनको सब कहीं कहीं भेज दिया। और उन लोग बोल रहे नहीं, हम लोग पॉन्ड को, आई मीन लेक को पॉन्ड में बदल रहे हैं, मतलब 5 फीट का कर रहे हैं। अभी 19 फीट है तो उसको 5 फीट तक कर रहे हैं। मैंने बोला 5 फीट करेंगे तो इसमें कोई जीव जंतु ये सब नहीं रहेगा, और मच्छर का न्योता है, और बेसिक इसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कल बुलाया था मैंने, और आके उनको कुछ कागजात दिए कि ये आप बंद करो, पर आई डोंट नो हाउ मच वी आर सक्सेसफुल इन दिस एंड फॉर हाउ लॉन्ग। क्या लोकेशन है? लोकेशन है जो मैं आपको बता दूं, छात्र। ओगनज लेक अहमदाबाद के बाहर तरफ है। थैंक यू सानिया जी। हाँ सॉरी। हाँ जी। जी बिल्कुल। देखिए आप मानसी जी, आप इस ये लोकेशन लेके मुझे शेयर करेंगे तो मैं भी जी अहमदाबाद के कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा इनसे। जी जी, और ये 5 तारीख को वॉक कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और ये सच 5। में एक दुर्भाग्य की बात है कि लोग लेक के आसपास लोग बिल्डर अपना बिल्डिंग बनाते हैं और एक लेक व्यू के नाम पे अपार्टमेंट बिल्कुल। हाँ, बाद में उस लेक को ही बंद कर देते हैं। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा ही है, आपने ये सब डेफिनेशन बताया ना। की सरकार होती है, इसमें सरकार के अधिकारियों को भी कुछ पहुंचता है, कुछ उनकी जेब में जाता है, कुछ वहां के लोकल विधायक की जेब में या सांसद की जेब में जाता है। तो ये सच में एक वो है। और वहां पे एक अहमदाबाद में पहले एक मेयर थे अहमदाबाद के, शायद क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने एक के लिए काफी एक लेक के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था। तो आप मुझे भेजेंगे तो मैं अहमदाबाद के कुछ लोग जो मेरे संपर्क में उनसे कांटेक्ट करके, क्योंकि ये इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग विरोध करेंगे उतने ज्यादा चांस होंगे कि ये काम रुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, वहां से हैं योंग सू करके हैं, वो उन्होंने रीच आउट किया है, तो वो पीपल मोबिलाइज कर रहे हैं, तो शायद सानिया जी को भी वहीं से पता जी चला जी होगा। जी। जी, अजीत सर आपका मैसेज है ग्रुप में, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कैन यू हियर मी? ओके, यस प्लीज बताइए। सॉरी, ये प्रश्न पानी और तालाब के ऊपर नहीं है, ये मियावाकी के ऊपर है। ये सब जगह एक ऐसा पॉपुलैरिटी फैल गया है कि इस नाम के ऊपर मियावाकी 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 फॉरेस्ट में जब भी लगाते हैं, प्लांटेशन लगाते हैं, कम से कम सिर्फ 2 फीट या 3 फीट की फासला देते हैं एक पेड़ के दूसरे पेड़ के बीच में। जब हमने बहुत समय से लैंडस्केपिंग करते आ रहे हैं, हमने मिनिमम जो है 6 फुट या 8 फुट की फासला, 2 मीटर या 3 मीटर की फासला पेड़ के बीच में रखना चाहते हैं, क्योंकि जब पेड़ बड़े हो, 2 साल 3 साल पेड़ बड़े हो,
ऊपर कैनपी उनका टच नहीं होना चाहिए, और जो पक्षियां हैं वो आराम से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चलना चाहिए, और कुछ खुली हवा हवा होनी चाहिए, और सूरज की रोशनी भी नीचे आना चाहिए, क्योंकि लोग चलेंगे, लोग उधर वॉकिंग करेंगे, और जीव जंतु के लिए भी अच्छा होगा। तो हमें ये है कि ये सिर्फ 2 फीट या 3 फीट की डिस्टेंस देते हैं, नहीं तो कम से कम 2 मीटर या 3 मीटर की फासला होना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या विचार है जी? जी अजीत सर, मियावाकी पे काफी आजकल डिस्कशंस चल रहे हैं, बहुत क्रिटिक्स भी हो रहे हैं और काफी धूमधाम से बनाया भी जा रहा है। मैं देख रही हूँ रामवीर सर दूसरे इस पे फोन पे है, मैं दूसरा सवाल भी you can give your feelings Yes. meanwhile. Personally, I will actually talk about doing Miyawaki very strategically, only when we have to make sure that we are really trying to retain this land along the water body. But general land पे जैसे मैं काफी उस पे मेरा सॉरी मैं फोन आ गया था। जी कोई बात नहीं, आप जाइए। सवाल बिल्कुल एकदम सटीक है ना, कि भाई हमें पेड़ों की डिस्टेंस को उतना मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मियावाकी में सारे पेड़ वो नहीं होते जो बड़े, जिनको बड़ा होना है ना। उसमें घास फूस के भी पेड़ होते हैं ना, उसमें ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनकी हाइट कभी 5 फीट से ज्यादा नहीं होनी। उसमें मतलब जिनको हम श्रब्स कहते हैं, जिनको हम हर्ब्स कहते हैं, जिनको हम छोटे छोटे ऐसे भी पेड़ है जिनको 10-12 फीट से ज्यादा जिनकी हाइट नहीं होती, है ना। तो इसमें वो जो हम चिंता करते हैं कि भाई ये इतने पास लग के पेड़ कैसे बड़े होंगे, एक दिन तो ये फिर आपस में टकरा जाएंगे। वो इसलिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मान लो एक पैच में पीपल का पेड़ एक ही रखा जाता है ना, और सारे पेड़ रखे जाएंगे गुलाब के, घास के, है ना। अब घास के जंगल में अगर पेड़ लगा देंगे तो घास तो कैसे होगी, है ना। तो उसमें घास के पेड़ भी लगाते हैं जिनको हम श्रब्स कहते हैं। तो इसलिए इतने सारे पेड़ एक जगह पर लग जाते हैं ताकि वो जंगल का रूप ले सके, वहां पे बटरफ्लाई जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसमें जो है वो सारे पेड़ जो है इतने पास लगा दे जाए। उसका पास लगाने का रीजन यही होता है कि उसमें सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है वो श्रब्स की होती है। जैसे मान लो कनेर हो गया, गुलाब हो गया, है ना, ये छोटे छोटे पेड़ हो गए। तो ये जरूरी होते हैं किसी भी उसके लिए, हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए, लेकिन उनको क्वांटिटी उनकी बहुत सारी लगाई जाती है, तो इसलिए नंबर ऑफ प्लांट्स हमें ज्यादा लगते हैं। और आई थिंक वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी पे काफी वर्क किया गया है, और ग्रिड बना के उसको मियावाकी पे रखते हैं। जी। पर मैं फिर भी फोकस अभी दूसरा मैं पॉन्ड रिजुविनेशन पे लाना चाहती हूँ। और एक दूसरा आपने जो बात रखा कि अब आप एक नया एंडीवर्स पे काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि लैंडफिल साइट्स पे। तो जस्ट अजीत सर की बात से ही मुझे वो लगा कि एक डिग्रेडेड लैंड को बहुत फास्ट टाइम पीरियड में रिजुविनेट करने के तरीके से ही मियावाकी एज एन आइडिया लाया गया था जब जापान में उसका इन्वेंशन हुआ था। तो शायद इसलिए अभी भी इंडिया में गवर्नमेंट खुद भी सपोर्ट कर रही है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। तो उसमें रामवीर जी भी कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा सवाल है पॉन्ड रिजुविनेशन और लेक रिजुविनेशन से, तो मैं वो लूंगी। और मेरे भी कुछ सवाल है, फिर वो भी मैं पूछना चाहती हूँ। तो जैसा कि सानिया जी के सवाल से तो हमने यही देखा कि ज्यादातर लेक रिजुविनेशन, पॉन्ड रिजुविनेशन में ज्यादातर मेहनत तो पीपल रिजुविनेशन में लग जाता है, लोगों को मोबिलाइज करने में लग जाता है। जो मैं थियोरेटिकली क्लास में समझाती भी हूँ कि वाटर मैनेजमेंट में वाटर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, पीपल को ही मैनेज करने की जरूरत है। इफ वी डोंट डैमेज द वाटर, वाटर विल मैनेज इटसेल्फ। तो मेरा एक प्रश्न है। जी सर। मैं मनीष हूँ साहब, नहीं मैं मनीष हूँ। और रामवीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो ये जो नेचुरल लेक्स होता है, जो करीब करीब जो मानसून के बाद 5 गुना बढ़ जाता है, और मानसून के माने गर्मी के आते आते कम से कम वो 1/5 हिस्से का हो जाता है, ऐसे किसी नेचुरल लेक को आपने रिजुविनेट किया है? पहला तो ये, और दूसरा कि अगर किया है तो इसमें परेशानी क्या आती है, या आपको कैसे मतलब इस चीज को कैसे किया जाता है? नहीं, देखिए, नेचुरल लेक्स जो गर्मियों के दिनों में जिनका जलस्तर कम हो जाता है,
और मानसून के बाद भर जाता है ना। तो जल स्तर कम होना या तालाब का सूखना, लेक का सूखना, वो मतलब बिल्कुल भी मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि जितना जो नेचुरल सिस्टम है, अगर आप देखेंगे गांव में जो तालाब होते हैं उनमें जैसे ही गांव के जो घरों की मिट्टी आती थी या छत पक्का होती थी या घर में नीचे लिपाई होती थी, वो कहाँ से आती थी? वो एक साइकिल बनी हुई होती है कि जैसे ही समर के सीजन में वो 1-2 महीने के लिए कम होता है, पानी सिकुड़ के एक छोटी सी उसमें रह जाता है, बाकी में लोग अपनी मिट्टी निकाल लेते हैं अपने घरों के लिए, कुम्हार वाला अपने बर्तन के लिए ले जाता है, तो अलग अलग पर्पज के लिए ले जाते हैं वहां पे। जहां तक भारत में या नॉर्थ इंडिया की अगर स्पेशली मैं बात करूं, तो तालाबों को रिस्टोर करने का समय होता है मार्च से लेके और जुलाई तक। मार्च से लेके जुलाई तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च में वो पानी कम होने लगता है, और जुलाई के बाद अगस्त में, जुलाई के लास्ट में और अगस्त में फिर से मानसून आ जाता है, फिर से भर जाता है। तो यही 4 महीने होते हैं जिनमें तालाबों को रिस्टोर किया जाता है। तो हम तालाबों के लिए फिर उसी उपयुक्त समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त में बारिश आती है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो अपने आप ही भरे रहते हैं पानी से। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में इतना सर्दा होता है कि पानी सूखता नहीं है, फरवरी के बाद सूखना शुरू होते हैं वो, मार्च में थोड़ा कम रह जाता है, तो मार्च से हम काम करना शुरू करते हैं, और फिर ऐसे करते करते ये जुलाई तक हम उसको कर लेते हैं, फिर अगले साल ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लेक्स को हमने किया है जो इस प्रोसेस में चलते हैं, और कठिनाई उनमें नहीं, यही आती है कि जो वैसे तालाब को रिस्टोर करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो तो हमें आजकल जो लगती है वो लगता है एंक्रोचमेंट और उसका कैचमेंट एरिया डिस्टर्बेंस जो, क्योंकि कई जगह तालाब हैं लेकिन वो शहरीकरण अगर पहुंच गया है तो वहां पे चारों तरफ रिस्टोर करने के लिए, कैचमेंट एरिया को रिस्टोर करने के लिए कोई जमीन नहीं है, लोगों ने बिल्कुल उसको सटा के घर बना लिया, अब उसका कैचमेंट एरिया को कैसे रिस्टोर करे, वो एक बड़ा हमें चैलेंज दिखाई देता है। जस्ट मैं आपके पिछले उस बातों पे मैं ये रखना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं लेक में पानी सूखता है गर्मियों के समय, तो रामवीर हमको कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि कम्युनिटी एक सूखे तालाब को भी अप्रिशिएट करे। जब तालाब में पानी नहीं है, खाली मिट्टी दिख रही है, पुराने जमाने में जैसे आपने अभी बताया उसको यूज करते हैं, अभी नए जमाने में जमीन खाली दिखती है तो वो गार्बेज डालने की एक जगह बन जाती है। तो हमारा हमको अपने समाज में वो एक एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि अभी तालाब रिजुविनेट कर रही है, बारिश में फिर से भरेगी, तो उसको कचरा ना, ये एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे पास। वो जो छोटी झाड़ियां हो जाती है, झाड़ियों का एक्सेप्टेंस नहीं है, हम बोलते हैं खराब हो रही है, बहुत झाड़ियां आ गई है। तो झाड़ियां जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी, एक नेचर है, वहां इतनी इंसेक्ट्स होती है, उसके लिए हमको काफी एक्सेप्टेंस लोगों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम मैनिक्योर्ड लैंडस्केप बनाने लगे हैं, उसके कारण लोगों को झाड़ियां अच्छी नहीं लगती, सबको सुंदर गार्डन दिखना चाहिए, जबकि बायोडाइवर्सिटी मतलब ही जंगली होना चाहिए, तो वो नहीं है। एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर कोई और सवाल पूछ रहा है तो आप प्लीज पूछिए, फिर मैं, मेरे 2 सवाल हैं एक्चुअली। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू रामवीर? सवाल तो बहुत है लेकिन मतलब जी पूछने का टाइम शायद कम है। मतलब जैसे मान हाँ लीजिए अभी कार्बन क्रेडिट्स वगैरह का जो बात करते हैं जी अभी जी इसका कैसे, मतलब पॉन्ड्स का एक काफी सारा ये होता है इकोसिस्टम जो कार्बन सूखने का होता है, जी तो लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और ये सब जो बोल रहे हैं और उसका आर्टिफिशियल तरीका भी निकाल रहे हैं कि जी कार्बन को जमीन के नीचे पुश किया जाए, तो ये एक नेचुरल उपाय है और इसमें हम मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं या किया है या बातचीत चल रही हो तो थोड़ा अगर लाइट डालें। बिल्कुल। देखिए, रामवीर। कार्बन क्रेडिट का जो है ये यूरोपियन सिस्टम है थोड़ा सा, भारत में अभी बहुत नया नया ये स्टार्ट हुआ है, हमसे भी बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले संपर्क करते हैं कि हमें आप कार्बन क्रेडिट कैसे दिला सकते हैं, तो मैं अभी बिल्कुल मना कर देता हूं कि आप देखिए, आप सपोर्ट करना चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हम आपको क्या सिर्फ एक बता सकते हैं कि आपके प्लांट जो लगे हैं, आपने अगर 10,000 पेड़ लगाए हैं तो 10,000 पेड़ों के 10,000 पेड़ों में कितना कार्बन मास जमा किया है हमने, कितना कार्बन की एक तरह से जो वॉल्यूम है वो हमने कितना जमा कर लिया है इन पेड़ों के माध्यम से, वो सिर्फ हम आपको एक कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कोई भी बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई हमसे ये उम्मीद करे कि हम उनको उन कार्बन क्रेडिट को बेच के उनके अकाउंट में पैसे ला के वो करेंगे, वो तो एक फिर ट्रेड सेल हो गई पूरा।
वो एक यूरोप में होता है। अभी तक भारत के लोकसभा में उसको पास नहीं किया गया है। इवन इस बार चर्चा हुई है, मध्य प्रदेश में इसके बारे में एक छोटा सा बिल पास हुआ है, लेकिन अभी पूरे भारत के लिए इसमें ऐसा कोई बिल पास हुआ नहीं है। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं कि ये सिर्फ गुड फील के लिए कि मैंने 5 पेड़ लगाए, मैं पूरे दिन में इतनी कार्बन जनरेट करता हूँ, चाहे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, चाहे वो अपने सांस लेने से। तो वो एक पेड़ लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक तरीका है कि आप जो है, अगर भाई दिन में इतना चीजें, इतने कपड़े पहन रहे हैं, इतना पानी पी रहे हैं, इतना चल रहे हैं, इतना धुआं निकाल रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो एक एस्टिमेशन किया जाता है कि आपने इतना कार्बन जनरेट कर दिया। अगर आपको इतने पेड़ लगाएंगे तो आप नेट जीरो हो जाओगे। नेट जीरो मतलब कि मैंने इतना कार्बन जनरेट किया और इतने उसकी जगह पेड़ लगा दिए, तो मेरा हिसाब बराबर, उसी को कहते हैं नेट जीरो। अब ये क्या है, भारत में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो यूरोप में जिनका माल एक्सपोर्ट होता है ना। अब G20 सम्मेलन हो गए, वो बहुत सारे सम्मेलन हो गए, सब देशों ने अपना अपना प्रॉमिस कर दिया कि हम भी कार्बन नेट जीरो हो जाएंगे, हम भी जीरो हो जाएंगे। अब यूरोपियन कंट्रीज के पास तो कोई जगह ही नहीं है उस तरह की, है जगह भी है तो वो क्या करना चाहते हैं, वो जिनका माल यहाँ से वो हो रहा है, मान लो यहाँ पे अगर XYZ कंपनी है जो यूरोप में माल करती है, तो यूरोप में बैठे हुए क्लाइंट यहाँ की कंपनियों को पुश करते हैं कि आपको देखिए, आप इतना कपड़ा हमें बेच रहे हैं, अपना कितना माल दे रहे हैं, तो आप पहले अपने आप को नेट जीरो करिए। उसी कैलकुलेशन को फिर वो वहां पे भी शो करते हैं कि देखो, हम इतना कपड़ा यहाँ पे मंगा रहे हैं प्रोसेस में, उससे इतना कार्बन जनरेट हुआ और इससे हमने इंडिया में अपने क्लाइंट के माध्यम से इतने पेड़ लगवा दिए, खत्म, जीरो। करना उनको कुछ नहीं पड़ रहा, कर हम ही रहे हैं, लेकिन वो शो वहां पे वो कर रहे हैं। तो यूरोपियन हो गए वो लोग यहाँ की कंपनियों को बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इस बहाने से पहले CSR की हेल्प से लगा रहे थे, CSR में क्या, आप कुछ भी, तो हर चीज में इसलिए कार्बन क्रेडिट्स की कैलकुलेशन की जा रही है कि कैसे हम इसको दिखा सकें या कैसे आत्मसंतुष्टि कर सकें कि हाँ, हम नेट जीरो होने वाले हैं। वो कि सारी कंपनियों के ऊपर वो प्रेशर है। जी, या थैंक यू रामवीर। मेरे जो दो इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है, जब स्पेशली जब हम पॉन्ड या लेक को टच करते हैं कुछ भी करने के लिए, पहला जो है वो उसको डीपन करना। तो क्योंकि सिल्टेशन आता है समय के साथ, तो ड्रेजिंग एक चीज है जो समय समय पे करनी चाहिए और करते भी हैं। और आपके भी काफी प्रोजेक्ट्स में आपने ड्रेजिंग भी किया है। डीपनिंग का जो एक सिस्टम है, उससे एक वाटर बॉडी का इकोसिस्टम ही बदल जाता है। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर डेप्थ तक वो वेटलैंड रहती है, उसके बाद पॉन्ड हो जाती है, फिर लेक हो जाती है। साइज से रिलेशन नहीं है उसका डीपनिंग का, तो आप उसको कैसे देखते हैं? और डीपनिंग का प्रेशर क्यों रहता है इतना? जब सिस्टम के साथ हम काम करते हैं तो डीपनिंग पे बहुत प्रेशर रहता है। जैसे अभी ओगनस से आए थे, उसी तरह शीलज में भी एक लेक मेरे घर के पास ही है, वहां पे भी काफी डीपन 3 टाइम्स डीपन कर दिया है। तो आप उसको कैसे देखते हैं वो जानना चाहूंगी। और दूसरा जो है उसी से रिलेटेड है, और शायद ये तीनों चीजें भी रिलेटेड होंगी। जो वाटर बॉडीज के एजेस होते हैं एम्बैंकमेंट में काफी इंटरेस्ट रहता है लोगों को कॉन्क्रीटाइजेशन करके पाथवे बनाने का या स्टोन एजेस करने का, जो मैं आपके प्रोजेक्ट्स में नहीं देखती, इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं उसको समझते भी हूँ कि क्यों जब सिस्टम के थ्रू डेवलपमेंट्स होते हैं तो उसमें इतना स्ट्रेस क्यों रहता है कि एम्बैंकमेंट किया जाए। मेंटेनेंस कम होती है एक तो लॉन्ग टर्म में, और उसमें खर्चा होता है तो खर्चा दिखता है। बट आपका क्या ओपिनियन है? और क्या डीपनिंग करके ही हमको आइलैंड्स निकालना रहता है कि आइलैंड्स के लिए अलग से आप कुछ अरेंजमेंट करेंगे? तो आप कैसे प्रोसेस को देखते हैं? देखिए, तालाबों की जो डीपनिंग है वो इसलिए आज के समय पे जरूरी है क्योंकि हमारा सीवेज उससे जुड़ गया है, और सीवेज में बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक भी जाती हैं। चाहे उसमें अगर लोग अपने सड़क पे गाय नहला रहे हैं, भैंस नहला रहे हैं, तो वो गोबर, और आज की समय पे तो अगर डेयरी है आसपास तो वो कई टन गोबर डेली उसमें बहा देते हैं नाली में, और वो पानी से नहाते। तो वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको बनना तो एक दिन मिट्टी है ना, वो डिकम्पोज होकर सब मिट्टी बन जाती है। तो तालाब की हाइट क्या है, धीरे 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 वो बढ़ने लगती है। और जहां तक वो काऊ डंग या गोबर का जो प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो पानी को परकुलेट नहीं होने देती है ना। अब अगर उसको नहीं हटाएंगे तो पानी का परकुलेशन नहीं होगा। तालाबों की डीपनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उस बेस को निखार सकें तालाब के, जहां पे एक्चुअल सॉइल आ जाए,
और जहां से पर्कुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाए। इसलिए तो डीपनिंग ज्यादा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि अभी ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है तालाबों में, और वो एक उसकी 4-5 फीट की एक मोटी परत बन जा रही है पिछले 10-15 साल में। उसको नहीं हटाएंगे तो तालाबों को रिस्टोर करने का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। उसको क्या किया जाता है, वो या तो किसानों के खेतों में डाली जा सकती है क्योंकि वो एक खाद बन चुकी होती है उस टाइम पे, या उसको सुखा के तालाब के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बनाया जा सकता है उसका। जहां तक कंक्रीट की बात है तो वो हम किसी तालाब में नहीं करते हैं, क्योंकि कंक्रीट करने से कंक्रीट जो किया जाता है या कंक्रीट की जो उपज हुई है हमारे देश में, वो हुई है टेंडर की वजह से। ये जो टेंडरिंग सिस्टम आया है गवर्नमेंट का, इसमें किसी भी गवर्नमेंट के इंजीनियर को, जेई को, एई को तब तक फायदा है जब तक प्रोजेक्ट की कॉस्ट करोड़ों रुपए में नहीं चली जाए। जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उतना उनका हिस्सा ज्यादा आता है, इसलिए वो जबरदस्ती हर चीज को कंक्रीटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में यही सिखाया गया है कि चीजों को कंक्रीटाइज कर दो तो वो साफ सुथरी रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम कच्चा छोड़ते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर पेड़ लगाते हैं, घास लगाते हैं, जंगली घास लगाते हैं, जो होना है होने दो उसके ऊपर। तो वो थोड़ा सा हमारे और उनके प्रोसेस में अंतर है। हम कभी इसलिए टेंडरिंग सिस्टम में नहीं जाते, क्योंकि एक बार हम उस घुस गए तो हमें भी मजबूरन वो चीजें करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हम लोगों का अब हमारे पास ऐसे, मेरे पास ऐसे आईएएस दोस्तों की भी कमी नहीं है ना ऐसे लोगों की कमी है जो टेंडर नहीं दिला सकते। मैं चाहूँ तो हर प्रदेश के बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में करोड़ों के टेंडर ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लेना। अगर उसमें हिस्से में घुस गए तो कंक्रीटाइजेशन हमारा करना मजबूरी हो जाएगी। अभी क्या है, हम पे वो प्रेशर नहीं दे सकते कि आप क्यों कंक्रीटाइज नहीं कर रहे। हमारी मर्जी, हम उसको कैसे करें, हम आपसे फंड नहीं ले रहे हैं, हम उसको कच्चा छोड़ेंगे लेकिन उसको तुमसे भी अच्छा सुंदर बना के छोड़ेंगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा, आइलैंड की बात है तो आइलैंड के लिए मिट्टी तालाब के बीच में से ही ली जाती है, तो उस बहाने से तालाब की डीपनिंग भी हो जाती है और तालाब के बीच में आइलैंड्स भी बन जाते हैं। तो ये तालाब की जो सैंड है या जो क्या कहते हैं उसको, सिल्ट है, सिल्ट को यूज करने का एक अच्छा तरीका भी है कि कैसे सिल्ट्स को हम वेस्ट को हम बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, आपने एकदम मेरे भी एकदम दिल की बात रखी है इस समय। मुझे लगता है कि हमको रैपिड फायर स्पीड में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बेनिफिट्स ऑफ नॉट डूइंग दिस, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दिस एंड लॉसेस ऑफ डूइंग दिस पे मेजर कैंपेन और प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि उनका ब्रेन वॉश जो हो गया है कॉन्क्रीटाइजेशन से, वो कहीं ना कहीं तो हमको खत्म करना पड़ेगा। और शायद और उनको आगे ये बताना पड़ेगा इम्पोर्टेंस की आज कमीशन की बात अलग है, पर कल क्लाइमेट चेंज है, दोनों को नापना पड़ेगा किसी न किसी समय। तो मुझे लगता है कि हम इस बात पे अभी हम आज का ये कॉन्वर्सेशन खत्म कर सकते हैं, 1 घंटा हो चुका है। थैंक यू सो मच रामवीर, आपने समय निकाला और दिल खोल के बात किया, और थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस। डू कीप वॉचिंग आवर वेबसाइट फॉर checking our forthcoming sessions. We are starting with water talkies. Thank you so much. And next Wednesday, we start with another series called Riverscapes and Biodiversity series. Thank you so much, all of you. Please take care. Bye-bye.